Okay, so today's topic of discussion is polynomials. Okay, so polynomials is something which is very new to you. Okay, बहुत ही like पहली बार आपने ये सुना है polynomials के बारे में, लेकिन polynomials से ज्यादा polynomials बहुत ही ज्यादा connected होने वाला है आपके 8th standard के टॉपिक जिसका नाम था algebraic expression से. ठीक है, algebraic expression का addition, multiplication, subtraction, division सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है. तो आज इस फर्स्ट लेक्चर में मैं आपसे वो सारी चीजें थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा. ठीक है, we'll just revise all those algebraic expressions that we have studied so far. We'll see कि कैसे algebraic expressions का multiplication, addition and all those things has to be done. Yeah, Aryan, my voice is not clear. Everybody else, आप लोग भी respond कीजिए. Is the voice clear or you are just facing any problem with the voice? Aryan is facing some problem. Beta, just do one thing. Yeah, Lokik is saying it's good. Screen is not visible. Screen is not visible. Okay, it's clear, fine. जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, just make sure that your internet connection is very good, okay, at your place. और मे बी आप एक काम कर सकते हो, मीटिंग को rejoin कीजिए if any time you feel कि आपको वॉइस नहीं दिख रहा है या फिर यू आर नॉट एबल टू सी, जस्ट rejoin the meeting. Okay, so what I said, हम लोग थोड़ा सा इसे रिवाइज करेंगे the algebraic expressions that we have studied. चलिए स्टार्ट करते हैं. Let's go for few simple examples of addition. If I take an example of, just a minute, if I take an example of suppose 2x square plus, give me a moment, there is some problem. Okay, so if I consider any algebraic expression and if I have to add it, like say, suppose I have 2x square and then I have 2x square, suppose I have 2x square y and then I have plus 7 x square y again. Okay, एंड अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है, सो हाउ एम आई सपोज टू ऐड दिस. ठीक है, आप सबसे पहले देखोगे कि सर क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है. वी कॉल दिस एज अ टर्म. ठीक है, आप सबको पता ही होगा कि दिस इज अ टर्म एंड दिस इज अनदर टर्म. एंड आपको पता होगा कि ये दोनों लाइक टर्म्स है. सर लाइक टर्म्स है कैसे पता चलता है? देखिए, दोनों के दोनों टर्म्स के जो कोएफिशिएंट्स है उनको नहीं देखना है, उनके आपको वेरिएबल्स की तरफ देखना है. जैसे कि ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, वाई है, तब ये ऐड होंगे. सो 2 + 7 डेफिनेटली विल गिव यू 9x square y. सबको ये पता होगा. ठीक है, so yes, variables are same, we can definitely add it. But what if I have something like this? I have 2xy plus I have 7y suppose. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि these two are not the like terms, and if they are not the like terms, we can definitely not add them up. इसका आंसर वही कॉपी के एक we can पेंसिल wait, के रबर mute के yourself, रगड़ के please mute yourself, participants. मी विचारा काय विचार करतो. Okay, so if I have two terms like this which are not like, आप देख सकते हो यहाँ पे 2xy है लेकिन यहाँ पे 7y है, definitely they are not the like terms. and जब वो like terms नहीं होंगे, you can't add it and you can't write it as 9xy or maybe just 9y or something. This will become absolutely incorrect. ठीक है, so like terms का addition आपने देख लिया, like terms का subtraction भी बहुत ही like it's the same thing. If I have suppose 5 and then x cube y square, and if I have another thing which is minus 1 x cube y square, if I have to subtract it, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले चेक करोगे कि लाइक टर्म्स है क्या नहीं. बेटा लाइक टर्म्स है या नहीं कौन बताता है आपको? क्या वो कोएफिशिएंट बताता है या वेरिएबल बताता है? सर वेरिएबल्स. ठीक है, वेरिएबल्स की बात करेंगे, दो वेरिएबल्स है, पहला है x, दूसरा है y. x वेरिएबल का पावर 3 है, दूसरे वाले टर्म में भी x वेरिएबल का पावर 3 है. सर पहले वाले में y का देखिए, y का पावर क्या है? y का पावर 2 है, दूसरे वाले में भी y का पावर 2 है. तो डेफिनेटली दे आर द टू लाइक टर्म्स, एंड इफ दे आर लाइक टर्म्स वी कैन डेफिनेटली add and subtract them. तो सब्ट्रैक्शन अगर करोगे तो 5 minus 1 will give you 4 and then it will be 4x cube y square. ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 4x cube y square. So this is the way of adding and subtracting the things. थोड़ी सी चीजें मल्टीप्लीकेशन के बारे में भी देख लेते हैं. ठीक है, देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, कहीं ना कहीं पर पॉलिनोमियल्स में हमें ये बहुत ही काम आने वाला है क्लास. ठीक है, तो देख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन. लेट्स टेक एनी एग्जांपल ऑफ, सपोज इफ आई टेक 2x minus 3y. Okay, I have 2x minus 3y and then I have 7x plus, suppose if I have 7x plus 3. Okay, that's it. ठीक है, अब ये जो algebraic expression है ये आपके पास multiplication में है. सर
आपने जैसे एडिशन में बोला कि दो एक्सप्रेशंस ऐड तभी कर सकते हो जब आपके पास क्या होगा, दोनों के दोनों लाइक टर्म्स होंगे। जैसे ये देखा था हम लोगों ने, दोनों के दोनों लाइक टर्म्स थे, आपने ऐड कर दिया। ये दोनों के दोनों लाइक टर्म्स थे, आपने सबट्रैक्ट कर दिया। ये दोनों के दोनों लाइक टर्म्स है, ऐड करना बहुत आसान था, लेकिन ये लाइक टर्म्स नहीं है इसीलिए ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो दोनों के दोनों टर्म्स, कोई भी चार टर्म्स यहाँ पे लाइक नहीं है सर। यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे 3y लिखा है, 7x and 3। सो डेफिनेटली if you take, yes, if you take any two terms or any two algebraic expressions which are not like but still you can multiply them। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में आपको like है या unlike है ये देखने की जरूरत ही नहीं है। मल्टीप्लीकेशन कोई भी दो algebraic expression का हो सकता है। It is very possibility that any two algebraic expression, whether they are like और whether they are unlike but still they will multiply। okay, तो चलिए देख लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। बहुत ही आसान तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन करना। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप टर्म्स को आइडेंटिफाई करो। ये आपका पहला एक्सप्रेशन है, ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन है। मैं क्या करूंगा, पहले एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे सर, समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से बताइए। देखिए मैं क्या करूंगा, पहला टर्म जो है ना पहले एक्सप्रेशन का, उसको उठाऊंगा और इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके सर, मतलब आप ये कह रहे हो कि आप पूरा का पूरा फर्स्ट टर्म उठाओगे जो कि है आपका 2x। देख लीजिए बच्चों, मैंने 2x को उठा लिया और इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि सर 2x को मल्टीप्लाई करना होगा 7x प्लस 3 से। वेरी गुड। उसके बाद क्या करोगे, आप सेकेंड वाला टर्म आपका उठाओगे। यू विल जस्ट टेक योर सेकेंड टर्म विद द साइन इटसेल्फ। ओके, अगर साइन माइनस होगा तो माइनस के साथ, साइन प्लस होगा तो प्लस के साथ, और फिर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे। okay, excuse me, yeah, so it becomes what, it becomes minus 3y and then you get what, okay, so आपको मिलेगा minus 3y and then the entire bracket, minus 3y and the entire bracket which is 7x plus 3। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। this is 2 and this is 7, this becomes 7 2 are 14, so ये बनेगा 14x square definitely because this is x and this is x square बनेगा। again this 2x will go inside। ठीक है, एक बार फिर से आपको ये समझा देता हूँ, इसको भी थोड़ा डिटेल में जाएंगे, इसका देखेंगे इसको आगे क्या किया जाता है सर। अभी देखिए बच्चों, ब्रैकेट के बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर आप देख सकते हो सर, ब्रैकेट के बाहर अभी 2x है। तो बच्चा क्या करोगे, इस 2x को पहले 7x से मल्टीप्लाई करो और इस 2x को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, द सेकेंड टर्म। तो चलिए वही करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, आई होप आपको ये सबको आता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक रिवीजन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आई नो आप सबको ये आता है। ओके, तो दिस बिकम्स 14x स्क्वायर एंड दिस बिकम्स 3 2 बिकम्स 6x। ठीक है, next the same thing happens with 3y but now you have to be extra cautious about it कि ये माइनस साइन के साथ है सर। ठीक है, तो साइन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3y को अंदर, तो ये बन जाएगा बच्चों, क्या बनेगा देखिए, व्हाट इट विल बी, इट विल बिकम सर माइनस 7 3 बिकम्स 21 एंड x इंटू वाई क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा xy। then this is 3 and this is 3 again but with a plus and minus। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस आपको पता है सर, प्लस इनटू माइनस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस 3 3 बिकम्स 9 एंड द फाइनल आंसर इज y हियर। ठीक है, तो अगर इसको अगर आंसर देखना होगा आपको तो ये आपका फाइनल आंसर होगा 14x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 21xy माइनस 9y। जल्दी से बताइए सब लोग, क्या आपको ये समझ गया, ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन वाली चीज बताई आपको, जल्दी से बताइए। Yes, sir. एवरीबॉडी ओके, वेरी गुड, पुट अप इन द चैट सेक्शन जल्दी से। ओके वेरी गुड, चलिए बच्चों ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग दैट आई विल टेल यू इज द डिवीजन। ठीक है, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवीजन, बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखिए आई टेक हियर 15 and then I put here x cube y raised to 4 upon 30 x and then y square। ठीक है, now these are the two algebraic expression। आप देख सकते हो ये दोनों के दोनों क्या हुआ है, डिवाइड। ओके, वी हैव डिवाइडेड इट। तो ये डिवीजन वाली चीज कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए सबसे पहले ये जो है वेरिएबल को, सॉरी कोएफिशिएंट्स को देखिए, दिस इज 15 and this is 30, so 15 1 and 15 2। okay, 15 2 is 30, so this is x cube, this is x। तो ये x है, छोटा पावर हमेशा कैंसिल होगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा इधर x स्क्वायर। ये था y रेज टू 4, ये y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर और ये y रेज टू 4 कैंसिल होके यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। सो द फाइनल आंसर दैट यू विल गेट विल बी x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
जल्दी से बताइए इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट, दैट्स इट। ये इतना रिवीजन हमारे लिए काफी होगा आगे बढ़ने के लिए पॉलिनोमियल्स की तरफ, ठीक है। एवरीबॉडी, या आई वांट द रेस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। Yes, sir. वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा। तो चलिए, हमारा जो भी हमें रिवीजन चाहिए था वो पूरा रिवीजन हमारे लिए हो चुका है, एंड नाउ वी कैन जस्ट स्टार्ट डेफिनेटली विथ आवर पॉलिनोमियल्स फॉर दिस ईयर, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हियर इट इज, पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल्स जैसे कि हमने कहा कि पॉलिनोमियल्स इज वेरी मच व्हाट यू कैन से वेरी मच रिलेटेड टू योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। देखते हैं उसका क्या क्या चीजें यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड है हमारे लिए। पहले तो हमारे लिए क्या क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, ठीक है। सो फॉर दिस विल जस्ट गो टू योर व्हाइट बोर्ड, विल सी व्हाट कैन बी दी पॉसिबल definition और what are the concepts involved in this polynomials, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक दिस। देखिए, अगर अब मैं आपसे बात करता हूँ कि एक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो शायद मैं आपसे ये कहूंगा कि देखिए, जस्ट अ मिनट, देखिए, just observe an expression, okay, I'll just give you an expression and this is 4x raised to 4, okay, yeah, Abhairaj, you are very good, your answer is very nice, it is many terms involved, वो कह रहा है many terms होते हैं सर, बात तो आपकी सही है, ठीक है। anybody else who would like to try कि polynomial क्या होता है, क्या कोई और है जो हमें बता पाएगा polynomials के बारे में। देखिए, ठीक है, very good, I'm getting some answers, many terms, people are saying many terms। चलिए, that many terms has also got something identical to it, वो क्या identical चीज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो देखिए, which are in standard terms, many terms are involved in an equation, ऐसे आंसर आ रहे हैं मुझे, very very good, appreciated। A term which have 4 or more terms, very nice, that is also okay, but not always 4 or many terms, it can be one term as well, ठीक है, स्टैंडर्ड टर्म्स होते हैं। चलिए बात करते हैं पॉलिनोमियल के डेफिनेशन की, बता देता हूँ आपको पॉलिनोमियल होता क्या है एक्चुअली। देखिए, पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे ना, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में दो चीजें होती थी। कौन सी दो चीजें सर? एक वो चीज जिसको आप नाम देते थे कोएफिशिएंट्स, ओके, एक वो चीज थी जिसको आप नाम देते थे कोएफिशिएंट्स, याद है आपको? आप कुछ तो कहते थे जिसे नाम देते थे आप कोएफिशिएंट्स, और एक वो चीज होती थी जिसे आप नाम देते थे वेरिएबल, है ना, याद होगा आपको, एक कोएफिशिएंट होता है, एक वेरिएबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 2 भी आपका कोएफिशिएंट होगा, y क्यूब आपका वेरिएबल होगा, ठीक है। देन दिस इज y स्क्वायर, दिस इज y, सो इफ आई हैव रिटन एवरीथिंग इन y, लेट अस मेक इट इन y ओनली, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हटा के हम लोग y में लिख देते हैं, तो ताकि आसानी होगी हमें, एक ही वेरिएबल में चलेगा तो, ठीक है। सो आई विल जस्ट राइट इट एज y रेज़ टू 4। देखिए, now, this polynomial that you are going to study is always involved one variable only. Okay, it is always involved one variable. आपके टेक्स्ट बुक में जो भी सम है वो सारे one variables के हैं, ठीक है। अब देखिए, वेरिएबल और कोई वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट्स, ये दोनों मिलके, मतलब एक वेरिएबल ले लिया, एक कोएफिशिएंट ले लिया, ये दोनों बच्चा मिलके क्या बनते हैं? ये दोनों मिलके बनते हैं एक टर्म बनता है। क्या बनता है? एक टर्म बनता है, ठीक है। तो सर ने क्या क्या बताया अब तक कि आपके एक्सप्रेशन में होता है कोएफिशिएंट, होता है वेरिएबल, और वेरिएबल और कोएफिशिएंट दोनों मिलके क्या बनते हैं? टर्म्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन सर एक मिनट, आपने बोला ये टर्म होते हैं, और मैं एक और चीज बता रहा हूँ कि आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स में भी वही होता है। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? पॉलिनोमियल इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी टर्म्स, जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला, आई अप्रिशिएटेड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था कि सर पॉलिनोमियल यानी कि ना बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसमें, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर दिया था, तो सही था वो, इट इज हैविंग मेनी टर्म्स इन इट, ठीक है। अब इसमें और कौन सी चीज मुझे बतानी है, देखिए, अगर बच्चे आप देखोगे तो कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे सर ये -10 को आपने ऑब्जर्व किया, आप बोल रहे थे टर्म्स के बारे में आप बात कर रहे थे, लेकिन -10 ये टर्म नहीं है सर। कुछ बच्चे बोलेंगे -10 ये टर्म नहीं है, तो मैं आर्ग्यू करूंगा कि नहीं ये भी एक टर्म है। तो बच्चा बोलेगा सर मुझे तो कोएफिशिएंट दिख रहा है, वेरिएबल तो मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपने क्या बोला कि एक टर्म वो होता है जिसमें कोएफिशिएंट के साथ साथ क्या होता है? वेरिएबल भी होता है। लेकिन बताइए इस -10 में कहाँ है वेरिएबल? मैं क्या बोलूंगा, रुक जा बेटा रुक जा, इसमें ना वेरिएबल है लेकिन दैट इज हिडन। हिडन कैसे हिडन है सर बताओ? देखो, कैन आई राइट दिस -10 एज -10 इंटू वाई रेज टू 0। मैंने क्या लिखा? y रेज टू 0 लिख दिया सर। सर y रेज टू 0 मतलब एनी नंबर दैट यू कैन सी
if it is taken to the power 0 becomes what जल्दी से बताओ. Any number which is taken to the power 0 becomes what? It becomes 1. Very good. So it is nothing but यहाँ पर 10 के साथ क्या है, y raised to 0, hence it becomes -10 only, इसीलिए हम लोग सिर्फ -10 लिखते हैं. So -10 is also a term. तो yes sir, एक चीज हमें पता चल गई, जैसे आपने बताया कि एक पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स होते हैं. ठीक है, एक पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स होते हैं. और एक और चीज सर, आपने अगर नोट की होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जरूर नोट किया कि सर इनके पावर्स को ध्यान से देखिए. पहला पावर 4 है, उसके बाद पावर डिक्रीज होके 3 बन गया, उसके बाद पावर डिक्रीज होके 2 बन गया, फिर पावर बन गया 1 और फिर पावर बन गया 0. सर देख लो भाई, ये ऑब्जर्वेशन मेरा सही है कि पावर हमेशा यहाँ पे डिक्रीज हो रही है. सबसे बड़ा पावर था आपका, क्या था सबसे बड़ा पावर? सबसे बड़ा पावर था 4, फिर डिक्रीज होते होते 3 बन गया. एक एक डिक्रीज हुआ है सर पावर, एक एक डिक्रीज हुआ. यस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या बताता है आपको? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख के बताता हूँ. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स टेल्स यू दैट इट इज a0 x raised to n, then we have a1 and then x raised to n minus 1, plus we have a2 and then we have x raised to n minus 2, और ये सिलसिला चलते जाएगा. ठीक है, ये चलते ही रहेगा. सर कब तक चलते रहेगा ये कब तक चलते रहेगा? जब तक आपको लास्ट में सिर्फ एक कोएफिशिएंट ना मिल जाए, और जिसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट. तो ये आपका एक प्रॉपर एक what you can say the general form of a polynomial. It is always a0 x raised to n, then a1 x raised to n minus 1, then यानी कि x की पावर क्या हो रही है सर? जो वेरिएबल है आपका, वो वेरिएबल पावर डिक्रीज होते जाएगा. लेकिन क्या सर, अगर एक इसमें एक टर्म मिस हो जाएगा तो क्या वो पॉलिनोमियल नहीं होगा? जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, देखिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा सर? देखिए, द एग्जाम्पल इज if I have 5x raised to 4 and then directly I have plus 17. अब इस पैटर्न को या फिर इसको, इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कीजिए. 5x raised to 4 और डायरेक्टली 17 आ गया, यानी कि ना तो इसमें x raised to 3 वाली पावर है, ना तो इसमें x raised to 2 वाली पावर है, ना तो इसमें x raised to 1 वाली पावर है, और डायरेक्टली आ गया कांस्टेंट. तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा सर? डेफिनेटली ये पॉलिनोमियल होगा. पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में ये नहीं कहा है कि सारे के सारे टर्म्स डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे टर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए. इफ यू हैव जस्ट वन टर्म और यू हैव टू टर्म्स और यू हैव थ्री टर्म्स, स्टिल वी कैन से दैट इट इज अ पॉलिनोमियल. सो वील कैटेगराइज दिस एज आवर पॉलिनोमियल. ये हमारा पॉलिनोमियल बन सकता है. दिस इज आवर पॉलिनोमियल. चलिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ. देखिए, मैंने एक और एग्जाम्पल दिया जिसमें मैंने सिर्फ लिखा -203, और मैं पूछ रहा हूँ बच्चों से कि बताओ बच्चों मेरे, ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए. ये मैंने जो लिखा हुआ है, ये आपका पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? चलिए, एक आंसर तो मुझे आ चुका है, अब सेकंड आ गया. बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है. सब लोग बोल रहे हैं यस सर, इट विल बी अ पॉलिनोमियल. यस, ये पॉलिनोमियल होगा. और बहुत ही बढ़िया आंसर दिया बच्चों आपने, ये सही है, ये एक पॉलिनोमियल होगा. इट इज अ अरे वाह, मोनोमियल. आंसर भी आना शुरू हो गया कि इसे मोनोमियल कहा जाता है बिकॉज इट इज जस्ट इन्वॉल्विंग वन टर्म. तो सर अगर आपके पास कोई एक नंबर दे दिया, वो भी एक पॉलिनोमियल बनेगा, बिकॉज पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अ टर्म. Okay, it is a collection of term or it can be a single term as well. तो इस -203 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -203 into x raised to 0 या y raised to 0 or anything. So it is having a coefficient, it is having a variable, definitely it will be a polynomial. ठीक है, और polynomial का एक टाइप होगा, वो टाइप क्या होगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जरूर. ठीक है, चलिए पहले आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के ऊपर. ठीक है, यहाँ तक आपको सबको समझ गया जस्ट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कैन बी अ पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज नॉट अ पॉलिनोमियल? जल्दी से बताइए, आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बढ़िया. चलिए, वेरी नाइस, एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस. ओके ओके बच्चा, लेट्स गो अहेड विद अ न्यू टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी हियर. देख लेते हैं अभी हमें क्या पढ़ना है. पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. ओके, we have seen what is a polynomial, definition देख लिया. what is a coefficient, we have seen what are the terms. ये दोनों चीजें हम लोगों ने पढ़ ली. ठीक है, अब बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल की भी बात कर ली मैंने, आपको बता दिया एक अगर सिंगल नंबर होगा तो उसे कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इट इज जस्ट हैविंग अ गुड नेम टू इट. इट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल और इट इज कॉल्ड एज अ जीरो पॉलिनोमियल. ठीक है, zero polynomial, the constant polynomial zero is called as a zero polynomial. Okay, if the number is zero then it is called as zero polynomial. If it is any random number that you can think of, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था -203 दिया था आपको, तो वो -203 क्या बनेगा? it will be called as a constant polynomial. ठीक है, because it is just a single constant number. Let's proceed ahead. Let's see what we have.
Okay, now let me tell you the different types of polynomials. ठीक है, let's go back to your whiteboard and let us see different types of polynomials that can be classified. Okay, now polynomials को मैं classify करूंगा. You just tell me what can be the. Okay, सही है या नहीं है वो आप चेक कर लो. ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कौन से टाइप के polynomials हमारे पास होते हैं. देखिए, पहला जो टाइप है जिसके बारे में मैं बात करूंगा उसे कहा जाता है, we call it as, we are talking about types of polynomial. ओके, और जो पहला टाइप मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उसे कहा जाता है मोनोमियल. उसे कहा जाता है मोनोमियल. चलिए जल्दी से. ओके, मोनोमियल. मोनो ये नाम से क्या पता चलता है? अब तो मोनो मतलब सिंगल. ओके, मोनो इज सिंगल. ओके, तो सिंगल यानी कि a polynomial which involves just one single term. Okay, monomial यानी वो होगा जिसमें सिर्फ एक सिंगल only one, we have just one term in it. मैं एक term बोल रहा हूँ. ठीक है, मैंने constant नहीं कहा, मैंने कहा एक term. Okay, don't confuse yourself. I didn't say it is a constant, but it is just a single term, which means that if I have 15 x square y and z, can I call it as a monomial? Yes sir, this is a monomial because it is having just a single term. Now if I write minus 500, is it a monomial? Yes, it is a monomial because it is having just one single term, and you can create as many expressions or as many examples as you can. ठीक है, monomials के examples आपको समझ में आ गए होंगे. ठीक है, now let's move ahead. Let's talk about the second type of polynomial, which is binomial. Now as the name suggests, binomial का मतलब होता है, bi का मतलब होता है दो. Okay, the name bi stands for, we are talking about two terms here. ठीक है, तो अगर आपके पास दो टर्म्स होंगे then it will be called as a binomial. लेकिन सर एक चीज पूछनी थी कि बाइनोमियल में, क्या बाइनोमियल में आपके पास कंसेक्यूटिव टर्म्स होने चाहिए या कोई भी रैंडम टर्म चलेंगे? बेटा कोई भी रैंडम टर्म्स चलेंगे. पॉलिनोमियल्स जैसे आपको डेफिनेशन मैंने बताया था, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ये नहीं कहता है कि आपको कंसेक्यूटिव टर्म चाहिए या एक के बाद जो होंगे, एक के बाद जो दूसरा टर्म आता है वही चाहिए. इट कैन बी ऑफ एनीथिंग. यस, आई एम गेटिंग सम एग्जांपल्स एज वेल. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. This can be written as 5x square y, एक टर्म है, plus 7y and I can say 7yz. These are the two polynomials in different variables, but let's make it in the single variable. आपका जैसे कि आपका चैप्टर चल रहा है सिर्फ सिंगल वेरिएबल में, तो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लूंगा मैं. I can write here 2x. That's it. तो ये हो गया आपके पास एक बाइनोमियल काइंड ऑफ टर्म. ठीक है, नाउ क्योंकि आप लोग एक सिंगल वेरिएबल पढ़ रहे हो तो इस एग्जांपल को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया था मैंने. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. थर्ड टाइप विच कैन बी कैटेगराइज्ड इज, yes, Aryan, you are saying that means it have two coefficients and two variables. Well, if it can have two coefficients, two variable also, or it can have any possible combinations, but as I'm saying, it should be of two terms basically. दो टर्म होने चाहिए. अब उसमें दो कोएफिशिएंट है या एक ही कोएफिशिएंट है? कोएफिशिएंट्स तो ऑब्वियसली दो होंगे उसमें, लेकिन अगर आप वेरिएबल की बात करोगे तो वेरिएबल नहीं भी हो सकता है. ओके, मतलब x रेज़ टू 0 अगर होगा तो. चलिए अभी आगे बात करते हैं ट्राइनोमियल. जैसे बच्चों ने बोल दिया सर आगे होगा ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे? यस, ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे? बच्चों के आंसर आ रहे हैं सर, इट विल बी इन्वॉल्विंग 3 टर्म्स. चलिए अभी ले लिया मैंने 3 टर्म्स. एग्जांपल भी आपके सामने रख देता हूँ. आई कैन हैव 5, व्हाई आई एम टेकिंग ऑलवेज 5 यार, सो ऑब्सेस्ड विद द नंबर 5. minus 4x raised to 5, okay, again 5, then plus 7x and minus 10. That's it. आप देख सकते हो इसमें कितने टर्म्स इन्वॉल्व है. Okay, there are having, sir, we are having here 1, 2 and 3. 3 terms are there, sir. It will be definitely called as a trinomial. Okay, so monomial, binomial and trinomial. Okay, और इसके आगे अगर कोई टर्म्स होंगे, इसके आगे देखिए अगर 3 टर्म्स है तो we can definitely call it as a monomial, binomial और trinomial. लेकिन सर एक बंदे ने मुझे बोला कि ये है पॉलिनोमियल. इसको क्या कहा उसने? पॉलिनोमियल. तो क्या वो गलत था? क्या वो गलत था? बताइए जल्दी से. इफ somebody comes to me and he said कि मैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नहीं बोलूंगा, मैं उसे पॉलिनोमियल बोलूंगा, तो क्या वो गलत है? नहीं, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, तो ये जो है ना, ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्यों पढ़ रहे हैं सर? इट इज अ टाइप ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल आपके सामने आ गया जिसमें एक टर्म है तो उसका नाम आप पॉलिनोमियल जरूर है वो, लेकिन पॉलिनोमियल में एक खास वैरायटी है उसकी.
उसे कहा जाता है मोनोमियल। और पॉलिनोमियल में एक और चीज है बाइनोमियल, पॉलिनोमियल में एक और चीज है ट्राइनोमियल, ठीक है। लेकिन कब तक है ये, बस इतने तीन ही है। इसके आगे अगर कोई आ गया आपके सामने और उसने एक x⁴ वाला एग्जांपल दे दिया, मतलब x⁴ नहीं, एक्चुअली 4 टर्म्स वाला एग्जांपल दे दिया, जैसे कि मैं आपके सामने रखता हूँ 4 टर्म का एग्जांपल। सपोज x⁵ है, ठीक है, -x³ है, +x है, एंड -7। अगर ये एग्जांपल आपके सामने रख दिया तो आप ना तो उसे मोनोमियल कहोगे, ना बाइनोमियल, ना ट्राइनोमियल, सीधा इसे कैटेगराइज कर दोगे भाई साहब तुम हो पॉलिनोमियल। आप कोई स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते हो, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी सिर्फ 3 लोगों को अलॉट की गई है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। फर्स्ट रैंक इज मोनोमियल, सेकंड रैंक इज बाइनोमियल और थर्ड रैंक इज ट्राइनोमियल। उसके बाद जो भी आएंगे वो सारे पॉलिनोमियल कैटेगरी में आ जाएंगे। क्या सबको ये क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? बच्चों जल्दी से बताइए, आर यू गाइस क्लियर विद दिस? व्हाट इज Yes, sir. योर, या वेरी गुड एवरीबॉडी, या okay, shall we proceed ahead now? Okay, I hope you are clear with this. What is a polynomial, what is a binomial, trinomial and monomial? Chaliye. Now let's proceed ahead. Okay, let's see what else we have to study from your syllabus. चलिए आ जाते हैं यहाँ पर. Let's go to your textbook. NCERT is here. Now फाइंड द डिग्री. ओके, या लेट मी गो बैक. डिग्री के बारे में बात करनी रह गई हमारी. डिग्री के बारे में बात तो हुई नहीं सर, डिग्री कैसे स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक नए फ्रेश पेज पे जिसमें हम लोग बात करने वाले डिग्री की. चलिए आ जाते हैं. डिग्री क्या होता है सर, डिग्री के बारे में थोड़ा सा बताइए. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. डिग्री बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, आई एम श्योर मेरे बच्चे बहुत पढ़ के आते हैं घर से. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. चलिए देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या चीज है. देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये बताने से पहले ओके, या लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स. एग्जांपल्स की मदद से आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि क्या डिग्री होती है, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सपोज दिस 27 x raised to x raised to 6 minus 5 x square प्लस 2. ओके, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए. यू कैन सी दिस इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. ओके, दिस इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. इफ आई आस्क यू विच इज द वेरिएबल हियर, मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि वेरिएबल बताइए इसमें कौन सा है, टेल मी विच इज द वेरिएबल. यहाँ पर x वेरिएबल है, राइट? सब लोग बोलेंगे सर x वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है, द वेरिएबल इज x. बट इफ आई आस्क यू टेल मी द हाईएस्ट पावर ऑफ योर वेरिएबल हियर, the highest power of your variable, everybody is definitely going to answer me, is the highest power of variable. The highest power of variable is what? The highest power of variable in this case is 6. The highest power of variable is 6, as you have answered. Very good. Chalo, very good. If I take one more example, if I have to give you an example like -28 and then plus 15 x square plus 10x raised to 5. If I give you this example, यहाँ पर अगर मैंने आपसे पूछा tell me the highest power, तो आपका आंसर होगा सर highest power of what? Highest power of variable is 5. ओके, तो ये जो हम लोग हाईएस्ट पावर लिखते जा रहे हैं ना, ये जो हम लोग हाईएस्ट पावर लिखते जा रहे हैं, ये सारे हाईएस्ट पावर आपके डिग्रीज होते हैं बेटा. ओके, दीज हाईएस्ट पावर्स आर नथिंग बट द डिग्री ऑफ योर पॉलिनोमियल. ठीक है, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल को अगर समझना होगा तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ polynomial is nothing but the highest power of variable. highest, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. तो आपके जो वेरिएबल हो गए उनके हाईएस्ट पावर होता है, जिसे कहा जाता है हम लोग, जिसे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, देखते हैं इसमें क्या ऐसा अलग चीज आपको बताने वाला हूँ मैं. चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5x raised to 7 x square प्लस 2x माइनस 7. चलिए अगर मैंने आपसे ये पूछा कि इसका डिग्री बताओ तो इसका डिग्री हो जाएगा 7, है ना. इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 7. देखिए सब लोग बताइए इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना. सब लोग बताइए, एवरीबडी आंसर इन द चैट सेक्शन. बताइए इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा इसका आंसर. हाईएस्ट पावर देखिए, या सब लोगों के आंसर आना शुरू हो गए.
सब लोगों के आंसर आ रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं 7 सर, 7। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने गलत जवाब दिया है बच्चों। Okay, now why it is wrong? Because let us see here what I said. It was the highest power of the variable. It was the highest power of the variable. बच्चा वेरिएबल पे ध्यान देना है आपको, ना कि आपको आपके कोएफिशिएंट पे ध्यान देना है। ओ सर, ओके, मतलब ये जो 7 है बेटा, ये पावर किसका है? इज इट द पावर ऑफ योर वेरिएबल और इज इट द पावर ऑफ योर कोएफिशिएंट? सर 7 is the power of coefficient, but we were asking about degree of polynomial and which is the highest power of variable. तो क्या आपका आंसर 7 होगा या आपका आंसर अभी 2 होगा? चलो जल्दी से, जल्दी से, अभी सब लोग आंसर अपना बदलेंगे। सब लोग कहेंगे यस सर, डिग्री होना चाहिए। डिग्री क्या होना चाहिए इस केस में? द डिग्री शुड बी 2। ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू सी द कोएफिशिएंट। और कुछ बच्चों ने आंसर किया था सर 14 नहीं बच्चा, आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करा दोनों का पावर। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा 2। जल्दी से बताइए, आर यू क्लियर विद दिस डिग्री वाला कॉन्सेप्ट? आर यू क्लियर विद दिस? सो दैट वी कैन नाउ मूव अहेड विद द एक्सरसाइज। ओके, बहुत ही बढ़िया बच्चा, बहुत ही बढ़िया। चलिए, वेरी गुड, लेट्स मूव अहेड। चलिए, लेट्स मूव अहेड विद द एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर पॉलिनोमियल। हियर इट इज। चलिए चलिए, फॉर जस्ट our practice, let's concentrate here. Find the degree of each of the following. It's a solved example, it is not an exercise, but still I want to ask you, find the degree of each of the polynomial. Look at the first question beta, look at the first question, this question, x raised to 5 minus x raised to 4 plus 3. What can you say about the degree of the variable? Okay, or the degree of the polynomial, basically the degree of polynomial is 5 here. Okay, very good, very good. Chalo, now let's come here, ये वाला बताइए, 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 बताइए। ओके, ओके, द आंसर इज 8। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, और थर्ड जब मैं पूछूंगा ना, थर्ड जब पूछूंगा तो कोई बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल का पावर कहाँ से निकालूं सर? लेकिन थोड़ा सा अगर तू ध्यान देगा ना बच्चा, मैंने तेरे को सिखाया था कि जब तेरे पास एक कांस्टेंट नंबर होगा, जब तेरे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, तो उसके आगे एक वेरिएबल होता है जिसका पावर क्या होता है बच्चों? जिसका पावर होता है 0। इसीलिए इसका पावर क्या बन जाएगा? 0। बहुत ही बढ़िया आंसर सब लोग दे रहे हैं। चलिए, वेरी गुड, सबको आता है मतलब ये। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू योर एक्सरसाइज नाउ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया, ये रहा आपका पहला एक्सरसाइज। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइज हियर। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State the reason for your answer. ठीक है, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? Okay, now which of your polynomials are the are in one variable? चलिए start करते हैं। Just look at this expression. Can you make out that whether this is a polynomial in one variable or not? जल्दी से बताइए, is it a polynomial in one variable? सर polynomial in one variable कैसे चेक होता है बेटा? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है, और वो कैसे चेक होगा। देखिए, आपके पूरे एक्सप्रेशन में, आपका पूरा एक्सप्रेशन वो उस फॉर्म में होना चाहिए। कौन सा फॉर्म सर? जो मैंने बताया था आपको, कौन सा फॉर्म था वो पॉलिनोमियल का? देख लीजिए, द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, या this was the form of polynomials that I was talking about. It should be a0 x raised to n, then it should have a1 x raised to n minus 1, then it should have a2 x raised to n, यानी कि कोएफिशिएंट्स होनी चाहिए और पावर ऑफ द वेरिएबल डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर पावर ऑफ द वेरिएबल डिक्रीजिंग नहीं भी है तो इट इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल, बट स्टिल आपको एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, पॉलिनोमियल हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, लेकिन अगर ऑर्डर में नहीं है तो भी वो पॉलिनोमियल है, याद रखिएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। चलिए, नाउ just make sure that is it a polynomial? yes sir, क्योंकि इसमें देखिए पावर आपका कम होते गया, x raised to 2 है, बाद में x raised to 1 है, और उसके बाद x है ही नहीं सर, इसमें x है ही नहीं। वेरी गुड बच्चा, तो ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? बहुत लोगों के आंसर आ चुके हैं मेरे पास चैट सेक्शन में पड़े हुए आंसर। सब लोग कह रहे हैं yes it is in standard form, and as it is satisfying the standard form we can say that it is a polynomial. ठीक है, so that will be the reason that since it is in the standard form of a polynomial, it is a polynomial in one variable. नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, इट इज वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। जल्दी से बताइए, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 एक पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? सर आपने तो बताया नहीं, कभी कभी भी आपने एग्जाम्पल में सर रूट लिया ही नहीं। ओके, रूट लिया ही नहीं, लेकिन फिर भी बच्चा एक समझ लो, आपका जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है।
it can be in root, it can be in power, it can be anything, it can be negative, it can be positive, it can be decimal also. अच्छा सर, मतलब आपके वेरिएबल पे कोई भी कंस्टेंट नहीं होता है क्लास। वेरिएबल जो होता है आपका, वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ रियल नंबर, सॉरी, इट कैन बी अ रैशनल नंबर, इट कैन बी अ होल नंबर, इट कैन बी एन इंटीजर, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो इसीलिए ये डेफिनेटली होगा आपका। ओके ओके ओके, फ्यू पीपल आर हैविंग डाउट्स, दे आर सेइंग नो, नो इट्स नॉट। ओके, बहुत बच्चे बोल रहे कि नो इट इज नॉट। अच्छा, may I know the reason बच्चा why you are saying this? Because it is in fractional form, because it is in fractional form बच्चा, but second वाला क्वेश्चन कहाँ पर fractional form है? ओके, देखिए, चलिए आपका मैं कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर लेता हूँ। लेट्स कम बैक टू योर व्हाइट बोर्ड। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, कंफ्यूजन आपको जो है वो दूर हो जाएगी। चलिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है इसमें। ठीक है, बता देता हूँ। देखिए, इफ आई हैपन टू हैव एन एग्जांपल लाइक दिस, 3y² प्लस 2y प्लस 7/5. Okay, now this is an example that I am talking about. सर, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये मैंने अगर आपसे सवाल पूछा तो आपका आंसर क्या होगा? मैं कहूंगा यस इट इज अ पॉलिनोमियल। सर क्यों? ये पॉलिनोमियल क्यों है? बच्चा देखिए, इसमें आपके जो वेरिएबल्स है, क्या वेरिएबल्स कभी फ्रैक्शन में दिख रहा है? क्या वेरिएबल कहीं पर रूट में दिख रहा है? नहीं सर। वेरिएबल कैसा होना चाहिए उस पर ध्यान दीजिएगा। वेरिएबल होना चाहिए आपका डिक्रीजिंग पावर में। ओके, एंड इट शुड ऑलवेज कंटेन अ पॉजिटिव natural number. It should have a positive natural number बोलने से अच्छा I can say that n belongs to what I can say, n belongs to a whole number. N belongs to whole number. Yeah, that's correct. That makes sense. N belongs to whole number. Okay, it can be a positive integer. The other way of calling it as a natural number. ठीक है, तो देखिए ये जो है ना, y के हमेशा पावर जो होते हैं वो इंटीजर नंबर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे 2 है सर, यहाँ पे 1 है सर, और यहाँ पे तो है ही नहीं, यानी कि ये y रेज टू 0 है सर। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेटली क्या बन जाएगा? दिस विल डेफिनेटली बी योर पॉलिनोमियल। दिस विल डेफिनेटली बी योर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब वापस हमारे डेफिनेशन पे आ जाते हैं, जहां पर हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा था। देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा था, बार बार आपसे कह रहा था कि ये y x रेज टू n है, x रेज टू n माइनस 1 है, सारे x के पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने कभी भी a0, a1, a2 के बारे में कुछ नहीं कहा। दीज आर द कोएफिशिएंट्स, इट कैन बी एनी रियल नंबर। ओके, आपके जो कोएफिशिएंट्स है बच्चा, जिस कोएफिशिएंट्स की आप लोग बात कर रहे हो, वो कोएफिशिएंट कैन बी ऑफ एनी रियल नंबर। अब आप सोचोगे ये रियल नंबर क्या चीज है सर? रियल नंबर यानी कि बेटा, अगर आपको रियल नंबर नहीं समझता है तो इट इज नथिंग बट इट कैन बी अ होल नंबर, इट कैन बी अ नेचुरल नंबर, इट कैन बी अ रैशनल नंबर, यानी कि डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है वो। ठीक है, जल्दी से बताइए। ओके ओके, आई गॉट इट बेटा, दे गॉट कंफ्यूज्ड इन दी स्क्वायर रूट। अभी बताइए, जल्दी से क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आपको? जल्दी से बताइए। ओके, क्लियर हो गया? ओके फाइन। चलिए, तो यानी कि अगर आपके पास अभी मैं ऐसा एक एग्जांपल दे दूं तो बताइए, अगर मैंने सामने दे दिया -7y⁵ एंड प्लस 3y² प्लस √27। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं, अगर मैंने आपसे ये पूछा कि बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप डेफिनेशन के पास जाओगे पॉलिनोमियल के, और पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या कहता है सर? वेरिएबल का पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। चलिए 5 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, कोई बात नहीं, बीच के टर्म स्किप भी हो सकते हैं, लेकिन सर जो वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने रूट में लिखा है, कुछ भी है, ये तो चलेगा ना, बिकॉज इट इज अ रैशनल नंबर, it is a rational number and it is allowed to be a coefficient, and hence I'll definitely call it as a polynomial. जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। Are you clear with this? Very good. Let's go ahead to our exercise जो हम लोगों ने छोड़ दिया था बीच में। अब बताइए, अब आप लोग एग्री करते हो कि ये पॉलिनोमियल होगा बच्चों? y² प्लस √2, क्या आप एग्री करोगे अभी? yes it is a polynomial, बताओ। yes, now can you say that it is a polynomial y² प्लस √2? या वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। अब जो कंफ्यूजन था शायद दूर हो गया होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ लुक हियर, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हियर। चलिए, सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या वेरिएबल के पावर्स एक पॉजिटिव इंटीजर है?
नहीं सर, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूट टी लिखा गया। क्या लिखा गया? रूट टी। यानी कि सर आपने ये बताया, देखिए प्रीवियस सम में आपने क्या बोला कि कोएफिशिएंट जो है वो रूट में हो सकता है। जैसे कि ये देखो रूट 2 है, तो कोएफिशिएंट रूट में है तो चलेगा, लेकिन वेरिएबल रूट में है तो चलेगा क्या आपको? क्या वेरिएबल रूट में चलेगा आपको? कैन यू जस्ट मेक इट एज अ पॉलिनोमियल? नो। तो आपका जो वेरिएबल है वो कभी भी, आपका वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं हो सकता, बिकॉज स्क्वायर रूट मतलब होता है टी रेज टू हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट टी रेज टू पावर हाफ, 1/2, एंड हेंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। इसके लिए रीजन आप ये लिखोगे। चलिए जल्दी से ये क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं रीजन आपको बता देता हूँ कि व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। जल्दी से ये क्वेश्चन कॉपी कीजिए, जल्दी से आपके नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। आई विल टेल यू द रीजन फॉर दिस। ओके, या क्विकली चलिए क्वेश्चन लिखा होगा आपने तो राइट डाउन। द गिवन एक्सप्रेशन is not a polynomial in one variable. I repeat, the given expression is not a polynomial in one variable. Since the power of the variable is not a positive integer. Okay, I repeat again, the given expression is not a polynomial in one variable. The given expression is not a polynomial in one variable since the power of variable since the power of variable is not a positive integer, क्या सबने लिख लिया? जल्दी से बताइए। Okay, I repeat again, the given expression is not a polynomial in one variable since the power of the variable is not a positive integer, चलिए बहुत ही बढ़िया। Now let's okay fine, okay, now tell me, क्या ये फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा जो है ये पॉलिनोमियल होगा? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बताइए क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? लेट्स सी मेरे बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा है ये। चलिए, पीपल आर सेइंग नो, आई हैव गॉट 2 आंसर्स सेइंग नो। व्हाट अबाउट अदर्स? जल्दी से रेस्पॉन्ड क्विकली। या वेर आर द पीपल? जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए। या पीपल आर टाइपिंग नाउ। ओके गुड, इट इज नो, मेनी पीपल आर आंसरिंग इट एज अ नो बिकॉज अगेन द सेम रीजन। इसका रीजन बताने के लिए मैं आपको ले चलता हूं हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ, जहां पर हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। ये रहा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आपके सामने, ये रहा पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के दौरान कहीं पर भी मैंने इस x को डिनोमिनेटर में नहीं रखा। x हमेशा आपका न्यूमरेटर में होता है। x कहाँ पर होता है? हमेशा न्यूमरेटर में होता है बेटा। क्यों? क्योंकि जब x चला जाएगा डिनोमिनेटर में तो वो क्या हो जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा चीज बता देता हूँ आपको। देखिए मैंने अगर ऐसा लिखा x रेज टू 5 प्लस 7 अपॉन x स्क्वायर, तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म जो होगा ना बच्चा, इस एक्सप्रेशन का जो इक्विवेलेंट फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये x रेज टू 2 जब ऊपर आएगा तो ये बनेगा 7x रेज टू -2। ठीक है, ये इसका इक्विवेलेंट फॉर्म होता है। तो जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये तो नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि x का पावर क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर हो गया। क्या हो गया? ये नेगेटिव इंटीजर। लेकिन जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन देखा हुआ है कि द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड ऑलवेज बी अ positive integer, it can never be a negative integer and hence it should not be a polynomial। ठीक है, तो यही डेफिनेशन आपके इस सम में भी काम आएगा। आप यहाँ पे लिखोगे the given expression is not a polynomial in one variable। लिखो the given expression is not a polynomial in one variable
एंड द रीजन सेम, जैसे यहाँ पर थर्ड का रीजन था वही रीजन यहाँ पर भी आएगा, सिंस द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। चलिए, let's move ahead. Should I start with the next question, the last sub question that we have left with? Start करें बच्चों? Okay, I guess you are writing. Okay, okay, just complete it. Complete it बच्चों, जल्दी से. Very good. People are done. Okay, good. Okay, Aryan, just complete it quickly. I'm waiting for you. Okay. Fine. चलिए, let's start. Fifth one. It is x raised to 10 plus y cube plus t raised to 50. You can see this is, sir, ये देखिए, ये तो पॉलिनोमियल होने के लिए इसके पास वेरिएबल है, x है, y है, t है. वेरिएबल के पावर भी पॉजिटिव है सर, वेरिएबल के पावर पॉजिटिव है एंड इट इज ऑलवेज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है सर, और कोएफिशिएंट भी है, सबके कोएफिशिएंट 1 है सर, तो ये तो पॉलिनोमियल होना चाहिए. लेकिन बेटा, यस इट इज, आंचल यू आर सेइंग यस इट इज, बट बेटा देयर इज वन फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर, it should be a polynomial in how many variables? It should be a polynomial in one variable. While we are having how many variables in this question? Fifth sub question, how many variables can you see? How many variables can you see in the fifth sub question? Yes, there are 3 variables that are used, and hence it cannot be considered as a polynomial in one variable. It can be considered as a polynomial in 3 variables. ये polynomial होगा, लेकिन कितने variables के लिए? 3 variable के लिए होगा. हमें तो 1 variable पढ़ना है सर इस चैप्टर में, तो इसीलिए ये polynomial नहीं होगा. चलिए, are you clear with this class? Are you clear with this? Shall we proceed towards the next one now? Question number 2 we are going to start. Should I start? जल्दी बोलिए. Okay, okay, okay. So the next question, let's proceed towards the next question. The question is asking us to write the coefficients of x square in each of the following. So they're asking us to find the coefficients of your x square. Okay, always remember. Okay, don't get confused just by the word coefficients. Okay, coefficients, there is a difference between coefficients and constants. पता है सर, पता है. coefficients यानी कि हमेशा वो x वाले टर्म के साथ होगा. constant यानी कि उसके साथ कोई भी x टर्म नहीं होता. it is always x raised to 0. ठीक है, इसे constant कहते हैं सर, हमें पता है वो. चलिए स्टार्ट करते हैं. we need to find the coefficients of x square. let's start with the first term. you can see this is the example, okay, that we are talking about. ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे लेने की जरूरत नहीं है शायद, इसे आप लोग वैसे ही मुझे बता दोगे. ये रहा आपका एक्स स्क्वायर, और सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताइए कि व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. वेरी क्विक, बी वेरी क्विक. सर एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, यानी कि वहां पर 1 होगा, एंड दैट इज योर कोएफिशिएंट दैट दे आर आस्किंग. वेरी सिंपल, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. लेट्स कीप इट वेरी सिंपल. लेट्स मूव अहेड. सर ये रहा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए आपको. चलिए हम बताते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, जल्दी से एवरीवन. द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, the coefficient of x square is -1. yes, abhairaj, it should be -1 beta. okay, because आपको साइन को भी इंक्लूड करना है. don't forget the sign. the sign itself is of your coefficient. ये साइन जो होती है वो कोएफिशिएंट की होती है, तो yes it should be -1. वेरी गुड, मानव ने तो सारा ही लिख के भेज दिया, बहुत ही बढ़िया. चलिए सर आगे बढ़ता है. ओके, आगे बढ़ता है. द थर्ड सब क्वेश्चन, यस द थर्ड सब क्वेश्चन आप देख सकते हो. द थर्ड सब क्वेश्चन यू कैन सी it is having pi by 2 x square plus x. सर x square का कोएफिशिएंट चाहिए ना. हाँ, मुझे x square का चाहिए, तो x square के सामने क्या लिखा है सर? x square के सामने pi by 2 लिखा है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? pi upon 2. that's it. very good, very good. and the last one, ये तो सभी बता देंगे. लास्ट वन बताओ बताओ बताओ. सर एक्स स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे बता रहे बच्चे कि इसका वैल्यू 0 होगा? सर मुझे नहीं पता चल रहा है. एक्स स्क्वायर जब है ही नहीं उसमें, तो कैसे बता सकता है कोई कि उसका कोएफिशिएंट क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज है, बता रहा हूँ आपको. देखिए, आ जाते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ, वहां पर बता देता हूँ. जैसे कि क्वेश्चन, एक रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए. ठीक है, टू मेक यू गाइस कंफर्टेबल, एक रैंडम एग्जाम्पल लेंगे. देखिए, हमने कोई एक रैंडम एग्जाम्पल ले लिया 5x स्क्वायर
प्लस 2x, ओके, या फिर सिर्फ इसे रखा, आई राइट इट एज 5x क्यूब, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, okay, it is 5x cube plus 2x minus 7, okay, and I'm now asking you, tell me the coefficient of x square. सर x square का कोएफिशिएंट निकालने के लिए, x square का कोएफिशिएंट निकालने के लिए x square होना भी तो चाहिए, लेकिन इसमें तो x square है ही नहीं सर, वही तो ट्रिक है, जब x square है ही नहीं तो can I write it, can I just write it with your permission, can I write it as 5x cube plus 0x square plus 2x and plus, can I write it as 7 या -7, सॉरी -7 था तो इसे माइनस कर देंगे, कोई बात नहीं, -7. जस्ट आंसर माय क्वेश्चन, इज दिस द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट, जल्दी से बताइए, इज इट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट? नो, ओके, नो, okay, why Jia, why are you saying so, why can't I write it like this? Jia, I'm asking you. ओके, फाइन, चलो, तो आप देख सकते हो कि एक 5x क्यूब प्लस 2x minus 7, I can just write it as 5x cube plus 0x plus 2x minus 7. And if now I am asking you कि tell me the coefficient of x square, it becomes very easy to understand कि sir x square का coefficient जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना 0, यही आपके x square का coefficient है, and that is very true. 0 is the value of your x square, in this case the coefficient of x square. Now the same logic when you apply it on the textbook question, which was this, just see, यहाँ पर अगर आपसे पूछूंगा मैं कि बताइए अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन में कौन सा, हाँ यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो आप बोलोगे कि द कोएफिशिएंट इज 0, ओके, फाइन, वेरी गुड. Now give one example each of binomial of degree 35 and of monomial of degree 100. बाइनोमियल होना चाहिए जिसका डिग्री 35 होना चाहिए. चलिए क्लास, बाइनोमियल जिसका डिग्री क्या होना चाहिए 35. लेट्स गो बैक टू योर व्हाइट बोर्ड, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. चलिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बाइनोमियल of degree 35. We are talking about binomial of degree 35. Now since we are talking about binomial of degree 35, सबसे पहले मुझे बताइए बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं बेटा? बाइनोमियल में सर होते हैं 2 टर्म्स, तो पहला टर्म यहाँ पर होगा, दूसरा टर्म सर यहाँ पर होगा. चलिए बाइनोमियल को अगर लिखना होगा तो डिग्री क्या होता है सर? डिग्री होता है, हम बताएंगे सर, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ योर वेरिएबल, है ना. डिग्री इज नथिंग बट दी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ओके, ये पता है सर हमें, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है. चलिए तो यहाँ पर अगर आपको एक बाइनोमियल लिखना है तो कोई भी बाइनोमियल आपके मर्जी से बना सकते हो आप. आपने समझो आपको चाहिए -7, उसका कोएफिशिएंट रख दो -7, आपको y में चाहिए रख दो y वेरिएबल यूज कर लो, ठीक है. तो ये ले लिया y जिसका डिग्री कितना हो गया 35 हो गया, ओके 35, क्योंकि आपको बोला गया बाइनोमियल का डिग्री 35 होना चाहिए, एंड प्लस आपने 8y लिख दिया यहाँ पर. क्या ये एग्जाम्पल एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल है जिसमें डिग्री 35 है? जल्दी से बताइए, हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस, हाउ टू राइट और हाउ टू फॉर्म अ बाइनोमियल विथ डिग्री 35? ओके, good example. You can have Abhay Raj, but it is just a single term beta. Abhay Raj, 9x raised to 35 is not a binomial, it is a monomial. आपको binomial चाहिए ना Abhay Raj, so it should involve at least one more term there. At least नहीं, exactly one term actually, not at least, exactly one more term there. ठीक है, आपका एग्जाम्पल सही है 9x raised to 35, but it should have one more term to make it a binomial. Fine. अब आगे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या पूछा गया. Next one is here. Yeah. You want a monomial of degree 100. I hope आपको पता होगा मोनोमियल क्या होता है. मोनोमियल इज नथिंग बट वन सिंगल टर्म, ओके, एक सिंगल टर्म होना चाहिए. जल्दी से बता दीजिए एक मोनोमियल का एग्जांपल. जितने बच्चे हैं ना अभी पार्टिसिपेंट्स है ना मेरे इसमें लेक्चर में, सब ने एक एक करके एक एक मोनोमियल बताना है जिसका डिग्री 100 है. जल्दी से स्टार्ट करते, देखते अलग अलग मोनोमियल के आंसर आएंगे. ओके, सिद्धांत इज सेइंग इट्स 3x raised to 100. वेरी गुड. या सुधांशु, आपका क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा. या लौकिक,
इट्स करेक्ट. देन अथर्व, वेरी गुड. x रेज टू 100 होगा अथर्व. एक टाइपिंग एरर आ गया, 100 होना चाहिए था. अभयराज 9x रेज टू 100, परफेक्ट. व्हाट अबाउट अदर्स? जिया, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. आर्यन, देन आंचल, यू बोथ हैव आंसर्ड इट करेक्टली. चलिए, तो बच्चे बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल बना ले रहे हैं. ठीक है, इट इज वेरी सिंपल टू मेक एनी एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. एक सिंगल टर्म होना चाहिए. या देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर सुशांत. ओके, सुशांत जी ने एक क्वेश्चन पूछा था हमें. कौन था वो? सुधांशु, सॉरी, सुधांशु जी ने क्वेश्चन पूछा था. द क्वेश्चन वाज, सर, इन x स्क्वायर, सॉरी, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ab x स्क्वायर. ओके, तो ये एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं. देखते हैं आप सब लोगों से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ए बी एक्स स्क्वायर, तो बताइए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है. जल्दी से कौन कौन आंसर करेगा? कौन कौन आंसर करना चाहेगा? जल्दी से आंसर कीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा. बहुत ही प्यारे बच्चे हैं. ठीक है, सब लोग आंसर दे रहे हैं, क्या बात है. आंसर आंसर आंसर, आई वांट द आंसर. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द डिग्री, आई एम आस्किंग अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. द क्वेश्चन इज अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोएफिशिएंट, नॉट द हाईएस्ट पावर, नॉट द डिग्री. बच्चों आप कंफ्यूज हो रहे हो. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द कोएफिशिएंट, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट, सॉरी, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द डिग्री, बट आई एम आस्किंग अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है? ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है उसके बारे में बात करते. देखिए, एक्स स्क्वायर के सामने जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. ये रहा आपका एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के सामने क्या यूज हुआ है? ए बी. तो इसीलिए आपका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा व्हाट? कोएफिशिएंट वुड बी ए बी इन दिस केस. ठीक है, जिया, यू हैव अंडरस्टूड दिस. द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वुड बी ए बी. यानी कि सर, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स स्क्वायर को छोड़ के कुछ भी लिखा है तो उसमें क्या होगा? वो बन जाएगा आपका व्हाट? कोएफिशिएंट. ठीक है, चलिए. ओके ओके, ऑल राइट, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट हैपेंस. कोई बात नहीं, समझ गए बच्चों. ठीक है, ओके. दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम सुधांशु, इसीलिए मैंने लिया था. ही हैज अ डाउट, सो इसीलिए. ठीक है, चलो सुधांशु, आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस नाउ. सुधांशु, ओके फाइन. चलिए आगे बढ़ते हैं. राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप. क्वेश्चन नंबर 4 on your screen. Just try to answer the questions that I'll ask you. Well, the question here is, write the degree of the following polynomial. They're asking about the degree. I hope you know the degree is nothing but the highest power of your variable. Here the variable is x in the first sub question, while the highest power is what you can see. jaldi se bataiye first ka answer. Yes, I'm not asking about the GI, I'm not asking about the type, but I'm asking about the degree, which means I'm asking about the highest power. तो पहला जो expression है पॉलिनोमियल का, उसमें हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसका डिग्री बन जाएगा 3. वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. बहुत लोग आंसर कर रहे हैं डिग्री एज 3. बहुत ही सही जवाब है. अगर सेकंड की बात करूंगा तो 4 माइनस वाई स्क्वायर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो बताइए 4 माइनस वाई स्क्वायर में हाईएस्ट पावर कितना है? सर आप देख सकते हो इसमें हाईएस्ट पावर जो यूज हुआ है ना वो 2 है. देख लीजिए, हाईएस्ट पावर जो यूज हुआ है वो है 2, इसीलिए इसका जो आंसर होगा डिग्री का वो हो जाएगा 2. बहुत ही वर्बल चीज है ये, बट आपको नोटबुक में लिखना होगा. यू हैव टू राइट इट. द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3 इन द फर्स्ट वन एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 इन द सेकंड वन. आगे बात करेंगे. इट इज 5t माइनस रूट 7. जल्दी से बताइए इसका डिग्री क्या होगा? सर 5t यानी कि t आपका वेरिएबल है. वेरिएबल का पावर क्या है सर? वेरिएबल का पावर तो 1 है. तो यस, इट इज अ व्हाट यू कैन से अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन? ये सब लोग मुझे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, ऑल ऑफ यू. वेरी गुड, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. नाउ बिफोर वी गो, सिद्धार्थ, जस्ट करेक्ट योरसेल्फ बेटा. इट इज x रेज टू 0. अगर कुछ नहीं रहेगा तो x रेज टू 0 होता है, इसीलिए उसका जो डिग्री होगा वो बन जाएगा 0. चलिए फाइन. नाउ बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम, लेट मी टेक यू गाइस on the whiteboard again, because now we are going to discuss about something else, something new. We are going to talk about the क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री. सर डिग्री के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है? ओके, सो अभी आपने जो टाइप्स ऑफ बताया था ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल,
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो हम लोग ने पहले बात की थी, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, ये क्या था सर? बेटा वो भी क्लासिफिकेशन था, लेकिन दैट वाज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म्स, कितने टर्म्स है आपके पास। अगर सिंगल टर्म होगा तो उसे मोनोमियल कहा जाएगा, ओके। अगर 2 टर्म होंगे तो बाइनोमियल कहा जाएगा, और 3 टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल कहा जाएगा। तो दैट वाज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन योर टर्म्स। तो अगर आप टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करोगे, चलो यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको, चलिए। If I classify it according to the terms, if I classify a polynomial according to the terms, तो terms वाला classification is divided into 3 parts. It is called as monomial. Then we have something called as binomial, and then we have ट्राइनोमियल। तो आपके पास टर्म पे बेस्ड ये क्लासिफिकेशन है। और अभी हम लोग जो पढ़ने वाले बच्चा, अभी जो पढ़ने वाले, दैट विल बी द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री, यानी कि डिग्री के बेसिस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो आपके पॉलिनोमियल को, और वो क्लासिफिकेशन मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, डिग्री बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है ना, दैट इज कैटेगराइज्ड अगेन इनटू 3 टाइप्स, ओके, अगेन इनटू 3 टाइप्स, और मे बी 4 या 4 टाइप्स एक्चुअली। तो पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, नाम ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेटिक। फिर होता है, जस्ट अ मिनट, जस्ट मेक, quadratic, then third is cubic, and the fourth one classification for degree is by quadratic। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ, द फर्स्ट वन इज लीनियर, द सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक, थर्ड क्लासिफिकेशन इज क्यूबिक, एंड द फोर्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक। सर थोड़ा सा इसको ना एक्सप्लेन करते हैं, चलिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या चीज है। देखिए, अगर अगर आपका अगर आपका डिग्री होगा 1 बेटा, अगर आपका डिग्री क्या होगा, अगर आपका डिग्री होगा 1, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा वो? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यानी कि सर एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना बेटा, देख, अगर मैंने लिख दिया x+7, यहाँ पर डिग्री देखो, डिग्री कितना है इस एग्जाम्पल में बच्चों, डिग्री कितना है इसमें, डिग्री है इसमें 1, डिग्री कितना है इसमें, डिग्री 1 है, इसलिए इसे कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब कहेंगे हम लोग, व्हेन द डिग्री इज, सर अगर ये 1 था तो ये डिग्री 2 होना चाहिए, यस। तो इसका एग्जाम्पल अगर देना होगा तो x² - 3, इट इज एन एग्जाम्पल फॉर क्वाड्रेटिक काइंड ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल देख लिया हम लोगों ने, x² - 3। अगर क्यूबिक की बात करेंगे तो अभी आप ही लोग मुझे बता दो कि क्यूबिक का डिग्री कितना होगा। सर क्यूब ये नाम हम लोग ने पहले भी सुना है कि क्यूब क्या होता है। क्यूब का जल्दी से बताइए बच्चों, क्यूब में क्या होगा इसका डिग्री? अगर लीनियर में 1 है, क्वाड्रेटिक में 2 है, तो क्यूबिक में कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, people are answering, they are saying degree should be 3 in this case sir। अगर डिग्री 3 है तो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल बता देता हूँ आपको, x³ - 7x² + 5, देख लीजिए, इसमें हाईएस्ट पावर आप देख सकते हो, आपके जो वेरिएबल का है वो 3, इसीलिए इट इज अ क्यूबिक काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब क्यूबिक होने के बाद जो हमारा लास्ट बचा हुआ है वो है बाई क्वाड्रेटिक। चलिए बाई क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं, बाई क्वाड्रेटिक क्या होगा, कैसे इसे क्लासिफाई किया जाता है। बाई क्वाड्रेटिक पे आ जाते हैं। देखिए, बाई क्वाड्रेटिक में होता है ना जो डिग्री, तो बाई क्वाड्रेटिक में जो डिग्री है, बाई क्वाड्रेटिक की जो डिग्री है वो होगी 4, ओके, या तो बाई क्वाड्रेटिक में होता है 4। और जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ, x⁴ + 3x² - 5। सो आप देख सकते हो, इट इज अगेन अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज इसका डिग्री हो गया 4। क्लास मुझे जल्दी से बता दीजिए, आर यू गाइज वेरी क्लियर विद दिस क्लासिफिकेशन? डिग्रीज पे बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है, इट इज कैटेगराइज्ड एज लीनियर, इट इज कैटेगराइज्ड एज क्वाड्रेटिक, देन कम्स क्यूबिक, एंड देन वी हैव बाई क्वाड्रेटिक। आई वांट द रिस्पांस फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ओके, देयर शुड बी response from all the participants। very good बच्चा, ठीक है। so we have got linear, we have got quadratic, we have got cubic, and we have got biquadratic kind of polynomials here। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। let's go back to your textbook, let's see what is the question related to your classification। ओके, सो क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ही 3 ही बोलना है, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इट इज x² + x, हाईएस्ट पावर कितना है, डिग्री कितना है इस फर्स्ट क्वेश्चन का, जल्दी से बताएंगे।
डिग्री कितना है इसका? सर डिग्री है 2, तो इसलिए क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक बनेगा। बहुत ही बढ़िया, सब लोग आंसर दे रहे हैं कि क्वाड्रेटिक होगा सर, वेरी गुड। नेक्स्ट सेकंड वाले को अगर आप देखोगे तो इट इज एक्स क्यूब, सॉरी x माइनस एक्स क्यूब। जल्दी से बताइए व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इट इज? इट इज अ क्यूबिक काइंड ऑफ पॉलिनोमियल सर, बहुत ही आसान है ये। आगे देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, जल्दी से बताइए क्या होगा ये? y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इट विल बी अ quadratic type of polynomial, बहुत ही बढ़िया। then 1 plus x what it will be? 1 plus x will be linear polynomial सर, बहुत ही बढ़िया। 3t जल्दी से बताइए, 3t, t का पावर 1 है सर, डिग्री 1 हो गया, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बात है बच्चों। r स्क्वायर, जल्दी से r स्क्वायर का आंसर क्या होगा? आंसर आना शुरू हो गया, इट इज क्वाड्रेटिक, वेरी गुड। एंड द लास्ट वन, इट विल बी व्हाट? इट विल बी 7x क्यूब, ठीक है। नाउ okay, so that was all we have studied in this session of your polynomials.